to restart the relationship with the government. And I told you, government से जब आपकी dealing होती है, तो the operational risk जो होता है वो काफी कम होता है. So you can actually take in a large amount of financial risk in case you get orders from the government, because the chances of default are very less when you are dealing with the government. Okay. तो गवर्नमेंट जब ट्रेजरी बिल्स भी अपने इशू करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो पैसा कहाँ से लाती है गवर्नमेंट? एक तो हम लोग जो टैक्सेस देते हैं उससे लाती है. उसके बाद where does the government get the money from? The government can get the money from the issue of some treasury bills in the market, which can be bought by me and you, and we can give a loan to the government by buying the treasury bills, and these bills have got very less amount of risk. तो एक तरह की फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट को मिलती है वो ट्रेजरी बिल से मिलती है. और हम लोग भी जो ट्रेजरी बिल खरीदते हैं या कोई इन्वेस्ट करता है उसमें, तो यू आर टेकिंग अ रिस्कलेस, in making a riskless investment. There is no risk involved when you are buying a trade. बाकी loans में risk होता है कि there could be a that you have given a loan to someone and there could be a default. But treasury bill में this तो risk free rate of interest जब आप देखते हैं तो आप treasury bill से ही देखते हैं. तो dealing with government, is associated with a lesser amount of risk. Okay. So Sheepshank was interested in this particular contract because he wanted to restart his business with the government. Okay, then where is this what was main? Main क्या है? क्या समझ में आता है तुम्हें? Main क्या है क्या? Main was what? Maine was a generally depressed state in 2000 that was not fully benefiting from the economic boom sweeping the country. So this year talking about 2000, there is an economic boom in the company, but Maine is a place where the boom has not been able to influence the business environment of Maine. The Navy order से क्या फायदा होगा? The Navy order would allow MMS to bring about 20 good steady jobs to the Rockland area and reactivate a factory which had been shut down in 1985 when MMS lost a contract to supply sales bag and PFDs to Marine and PFDs to West Marines Retail and Catalog Divisions. The factory was located on a 10-acre oceanfront site near Spruce Head, and the plant was fully depreciated on MMS books except for the $10,000 cost of the land bought in 1947. So Maine had a factory, this company had a factory, a building, which was not operative since when? This factory building was not operative since when? 19? Just let us see. Not operative. It was shut down in 1985. You see? Over here. Are you reading it? It was shut down in 1985. Okay. And it was he'll talk about it later, that this factory was located in a prime location. ऐसी लोकेशन जैसे बॉम्बे में आप जोहू बीच पे आपके पास कोई फैक्ट्री की जगह है, उस तरह की एक लोकेशन में ये फैक्ट्री लोकेटेड थी, and the factory was shut down and there was no activity happening in the factory since then. तो फैक्ट्री बंद हो गई थी, फैक्ट्री बिल्डिंग ऐसी छोड़ दी गई थी, वहां पे कोई काम नहीं चल रहा था, खाली पड़ी हुई थी फैक्ट्री. ओके. इस लैंड को जहां पे फैक्ट्री बिल्डिंग बनी हुई थी, इन लोगों ने $10,000 में खरीदा था 1947 में. This is what the information given is. Very similar to the prices in India then. जब आप 10,000 रुपए में लैंड खरीद सकते थे ग्रेटर कैलाश में, उस तरह का 1947 में बिल्कुल यही पोजीशन थी इंडिया की. रुपी और डॉलर was $1 and $1 was equivalent to each other. In 1947, $1 was equal to
1 rupee. And I know people who bought land in Greater Kailash for 1 rupee 50 paisa square meter. So that was the cost during those times. Very cheap. Anyway, so the company had, you see, और ये 10,000 का land जो था, the company had turned down $900,000 for the land in 1995 from a real estate developer. खाली पड़ा हुआ था, building खाली थी. There was no work being done over there. A real estate developer must have approached them कि आपकी ये building खाली खड़ी है, मैं खरीदने को तैयार हूँ, $9 लाख देने को वो तैयार था. तो 10,000 का land 1947 में was priced at, we can say that the market price of this land had jumped to $900,000 by 1995. How many years? 48 years. 47 to 1995 was 48 years, right? So 48 years ये land का appreciation हम निकाल सकते हैं, इसका appreciation कितना हुआ है land का. You see how much, what is the rate of appreciation of the land value? From $10,000 something becomes $9 lakh in 48 years time. If I ask you, tell me how much this land is appreciated per year, how will you get the answer? Suppose तुम्हारी एक घर है, तुम्हारे बाबा ने खरीदा था या तुम्हारे पापा ने खरीदा था या बाबा ने खरीदा था 1947. अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तुम्हारी अभी भी है और उसकी वैल्यू 1995 में 9 लाख रुपए हो गई. तो उसका पर ईयर रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर कितना हुआ है? हाउ विल यू फाइंड इट आउट? यू कैन यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है? P1 + R. देख लेते हैं. Compound interest formula is P1 + R to the power n is equal to T. So now in 1995, the terminal value of the land is how much? 9 lakh. And in 1947, the value of land was how much? $10,000. So P was 10,000. How much is n? How many years have elapsed? 48 years have elapsed. So you can substitute the values in the formula. 10,000 into 1 + R to the power 48 is equal to 9 lakh. Now you have to find out what is R. R will give you the rate of growth. So you can use the formula and just find out how much has the land appreciated during these 48 years. Let's find it out. ये सब हम कर चुके हैं इसलिए हम इसको यूज करके निकाल लेते हैं. Just put it in the computer formula. You will get the answer. See, it will be like this. 10,000 into 1 + R to the power 48 is equal to 900,000. Or 1 + R to the power 48 is equal to 900,000 divided by 10,000, isn't it? So you can cancel the zeros. You'll get 90 over here, isn't it? 3, 4, 3, 4. You'll get 90. So 1 + R to the power 48 is equal to 90, or 1 + R is equal to 90 to the power 1 by 48. This is what we have done in our questions in the beginning. So you can use the same concept. याद है वो 5,000 से 10,000 रेट निकाला था हमने, तो ये यूज किया था. So 1 + R is equal to 90 to the power, bracket open, 1 divided by 48, bracket closed, you get the answer. Then you can find out R. What is R? R is equal to this minus 1. 90 to the power 1 by 48 minus 1. This is R. तो कितना निकलता है? कोई निकाल के बताए? R is equal to 0.098. 0.098. That is how much percent? 9.8%. 0.098. फिर से करो 90 to the power
ब्रैकेट ओपन, आप कैलकुलेटर खोल लो, फिर लिखो उसमें 90 टू द पावर, निकालो कैलकुलेटर निकालो, अभी करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 90 टू द पावर ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय 48 ब्रैकेट क्लोज्ड। 90 to the power bracket open 1 divided by 48 bracket closed. No, देखो it's like this 90 to the power, okay, 1.098, yes, तुम्हारा कितना आया देखो 1.098, ठीक है। So 90 to the power तुम्हारा कितना है 1.098, yes. What about you? Minus 1. Okay, you got it? All of you got it over here? You got it? ठीक है, पीछे ठीक है बेटे? Yes sir. Is it okay with you? Okay. So what is the growth rate? R is what? If this is 1.098, if this is 1.098, so this is R is equal to 0.098. This is equal to 9.8%. So now we know that the land has grown by 9.8% per year for the last 48 years. So this is something which will be used by you many a times in corporate finance. So ये concept बहुत जरूरी है, ये मालूम होना, नहीं तो हम लोग स्कूल में ना log use करके करते थे इसको. Now that you got calculators, you can just forget the log concept and do it straight away. Do you remember log? याद है? लॉग क्या होता है? Yes sir, log. अच्छा, anyway, we will not waste time. आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली जब क्लास करेंगे मेरे साथ तो उसमें आपको मैं लॉग आना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या होता है. Anyway, so Sheepshank had no idea what the land was worth today, but he didn't care since it was not for sale. अब उसका लैंड पड़ा हुआ है वहां पे और बहुत ही प्रीमियम जगह पे लैंड पड़ा हुआ है और बेचने को तो है नहीं, so he was not really bothered कि क्या प्राइस उसकी अभी है. लेकिन if the Navy accepted his bid, अब आगे कोई पढ़े, दूसरा आदमी यहाँ से पढ़े, someone in the class please, कोई वॉलंटियर करे. If the Navy accepted his bid, Sheepshank was prepared to spend 5 lakh to renovate and refurbish the factory building and grounds, and 8 lakh to buy the manufacturing equipment needed for the contract. Please be quiet. Please be quiet. Please be quiet. At the back, please be quiet. Okay, what she has read, I'll repeat this for you. Sheepshank had no idea what the land was worth today, but he didn't care since it was not for sale. If the Navy accepted his bid, Sheepshank was prepared to spend 500,000 to renovate and refurbish the factory building and grounds, and $800,000 to buy the manufacturing equipment needed for the contract. हाँ, आगे बढ़ो बेटा. He also estimated that he would need to invest about $4,25,000 in working capital to support the project. He planned to borrow 50% of the required investment, 10 years at 10% interest, and fund the balance out of cash reserves. The equipment will be depreciated over 5 years and the building over 10 years. Okay, we can discuss this now. Now, I told you that when you are doing any capital expenditure analysis, we require to identify incremental cash flows. So, abhi though we do not know what we are doing, we are just reading the case. So, over here in the case, apparently, in case Sheepshank gets this order from the Navy, in that case, he plans to expend $500,000 to renovate and refurbish the factory building and $800,000 to buy the manufacturing equipment. So, ये $1,300,000 का, $13 lakh का तो immediate खर्चा उसके सामने है, capital expenditure, which he would be making in case he gets the contract, right? And he also estimated that he would need to invest about $4,25,000 in working capital to support the project. Now, what is working capital? What is working capital?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल? हमने अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा समझा था या So day to day use. डे टू डे एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चे कंपनी करनी होती हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सत्य है? हाँ, ओके, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जस्ट अ मिनट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए आपको। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, ये चारों टर्म्स। यू सी, अ कंपनी, आई टोल्ड यू, नीड्स टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर in order to install projects, and capital expenditure is required in the form of buying of machinery, buying of building, etc., etc., long term expenditure. So long term expenditure is represented over here, and I told you that you can consider this box as a combination of various investments the company would be making during the course of time. पहले एक करेगी, फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करेगी, फिर कोई तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी में एक रनिंग प्रोसेस होता है, isn't it? Okay. So these are the fixed assets, and you can consider them as combination of various projects in a company's operational activity scenario. Now this is current assets. This comprises of what? This comprises of current assets में क्या क्या आता है? लैंड तो फिक्स्ड एसेट होगा ना, फिक्स्ड एसेट होगा, लैंड तो फिक्स्ड एसेट है। कंपनी वुड नीड लैंड, इट वुड नीड बिल्डिंग, इट वुड नीड मशीन, इट वुड नीड लॉन्ग टर्म एसेट्स। That is, these are the fixed assets. Okay. What are the current assets? Yeah, एक वो कह रहे हैं raw material, Finished goods. raw material, finished goods, inventory. That is, inventory is called a current asset. What is the definition of a current asset? An asset which remains with the company for less than 1 year could be considered as a current asset. Is that okay? हमने ऑपरेटिंग साइकिल भी पढ़ी थी BAM में। Current asset could has two definitions. Either you can understand current assets via the concept of a financial year, in which we say that current assets are assets which remain with the company for less than 1 year. And the other definition is, which bankers actually follow, current assets are assets which remain with the company during an operating cycle. Operating cycle निकालना हमने सीखा था BAM में। इनफैक्ट आपको शायद क्वेश्चन भी आया था, ऑपरेटिंग साइकिल सीखा था आपने अकाउंटिंग में? याद है? नहीं याद है? ओके, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया होगा, नहीं भी बताया तो अभी आप ये समझ लीजिए, करंट एसेट्स आर, मैं बता दूंगा धीरे धीरे आगे चल के। करंट एसेट्स आर एसेट्स विच रिमेन विद द कंपनी फॉर लेस देन 1 year टाइम, 1 financial period। तो एक करंट एसेट ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्यों करंट एसेट है? एसेट क्या होता है? एसेट इज समथिंग ऑफ वैल्यू which can be converted into money in case you need to. It has got some money value attached to it. So raw material also has some money value attached to it. You can sell that raw material in case you do not process it. So that is a current asset. Similarly, किसी ने कहा finished goods. Finished goods is a current asset. Finished goods is also a current asset. You know, finished goods बना के आपने कोई सामान रखा हुआ है तो it is also an asset. And we call it a current asset. Why? Because most of the times finished good is not going to remain with the company for more than 1 year. You will sell it. मेरे पास जो कैश रहेगा उसको भी तो बोल सकते हाँ, ये कह सकते हैं,
उसको बोल नहीं सकते हैं, वो होता है करंट एसेट, होता है. Okay, so finished good and raw material are current assets. Why? Because they are things of value and you would actually not keep them for a very long time. They will be, raw material will be converted into finished goods and finished goods will be converted into sales. This is what will happen during a small period of time. अगर बहुत लंबा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, then your company is doomed. अगर रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हें काम नहीं आता है. और उसी तरह फिनिश गुड्स भी, दे शुड बी यू नो सेलेबल. अगर रखे हुए हैं इसका मतलब माल बिकता नहीं है तुम्हारा, नहीं तो फिनिश गुड तो बिक जाने चाहिए. तो ये दोनों करंट एसेट्स होते हैं. वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस आपको मालूम है ना क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस इज ऑल्सो एन एसेट. वाई? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में आप कार बना रहे हैं. अब एक कार आधी बनी हुई पड़ी हुई है फैक्ट्री में, उसकी भी वैल्यू है, उसमें मटेरियल लगा हुआ है, उसमें लेबर गया हुआ है. सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ वैल्यू व्हिच कैन बी अटैच्ड टू दैट यू नो सेमी मेड कार आल्सो. सो you say that work in progress is also a current asset. So every type of an inventory held by a company is a current asset. So in manufacturing you have three types of inventories, three current assets. In trading you have got one type of an inventory, so one current asset. Is that okay? What else? दूसरा cash. Cash is also a current asset. Why do we call it a current asset? Because you know it will be used frequently, and you will be keeping some amount of. You see, a normal prudent person would not want to keep a lot of cash with him. He would want to utilize the cash in some form of an investment where he can multiply that amount of money. Some amount of cash is required by you. Some amount of cash is always required by a company. Why? क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस जो होती हैं उसमें आपको कैश की जरूरत पड़ती है, तो आपको कुछ कैश रखना पड़ता है, फिर में भी आपको कुछ कैश रखना पड़ता है. So some cash has to be maintained by the company. How much cash has to be maintained by the company is the question mark. And you guys MBAs have to decide कि ये कितना amount of cash एक कंपनी के पास हरदम रहना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस रहना चाहिए, बाकी अमाउंट आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए. अगर आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है तो you are wasting that money. You are not putting it into any project to convert it into some profits. You are wasting that money. उसी तरह हम लोग कहते हैं सेविंग बैंक्स में आपका अगर 1-2 करोड़ रुपए पड़ा है तो आप बेवकूफी कर रहे हैं. आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं, so that you can multiply that amount of money. So cash is also a current asset. What else is a current asset? Debtors. जिन लोगों को आपने माल बेचा है और जिनको उस माल का पैसा देना है वापस, that is also an asset. I can buy the debtors of a company. I can tell a company, suppose करो एयरटेल के ऊपर, एयरटेल के पास 100 करोड़ के डेटर्स हैं. मैं एयरटेल से डील कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे सारे डेटर्स खरीद लूंगा. मतलब these guys had to give money to you. Now I'll buy these debtors from you. So instead of they giving money to you, they will give money to me. And I will give you upfront 90 crore rupees. तो मैं एयरटेल को क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ? मैं तुम्हें 100 करोड़ के डेटर मैं खरीद रहा हूँ और मैं तुम्हें इमीडिएटली 90 करोड़ दे रहा हूँ. अब एयरटेल को 100 करोड़ कलेक्ट करने में हो सकता है 6 महीने 8 महीने लग जाए. मैं प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ? मैं आज के आज तुम्हारे सारे डेटर्स खरीद दूंगा, मैं उनसे 6 महीने में कलेक्ट करता रहूंगा पैसा, और मैं तुम्हें 100 की जगह 90 करोड़ रुपए इस काम के दे रहा हूँ. तो दोनों को ही फायदा है. मुझे क्या फायदा है? जब मैं 90 करोड़ से 100 करोड़ कलेक्ट करूंगा तो 10 करोड़ ज्यादा मिल जाएगा मुझे. और एयरटेल को क्या फायदा है? दैट दे विल गेट 90 करोड़ रुपीज इमीडिएटली फ्रॉम मी. इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन. वी विल कम टू नो अबाउट दिस एट अ लेटर स्टेज. सो डेटर इज आल्सो अ करंट एसेट. और देखो, anything which is in, you know, which can be converted in money is a current asset. So debtors are also current assets. और ये जो करंट एसेट्स है इनमें पैसा लॉक्ड होता है कंपनी का. जैसे रॉ मटेरियल है, जब आप खरीदते हो रॉ मटेरियल तो आपका पैसा लॉक हो जाता है उसमें.
जब आप अपने किचन में रोटी आटा चावल खरीद के रखते हो तो आप पैसा खर्च करते हो, पैसा लॉक हो जाता है आपका उसमें। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा लॉक करके रख लोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो देखो, रॉ मटेरियल में पैसा लॉक्ड है, फिनिश गुड्स में पैसा लॉक्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा लॉक्ड है, कंपनी का लॉक्ड है ना। डेटर्स में भी पैसा लॉक्ड है। अगर 100 रुपए का माल बेचा है and the debtor has promised you to give this money after 6 months, how much money is locked? How much money is locked? If you have sold something, if you produce something at 80 rupees cost and sold it for 100 rupees to me, and I say that I will give you this money after 6 months, so what am I to your company? I am a debtor. How much money has the company locked in me? There are two answers, 100 or 80. कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 80, because 80 is what you had spent to produce that product. So the money which is locked is actually 80, not 100. 100 is the cost plus profit. So the money locked for the company is 80 rupees. In debtors also there is money locked in the company. So debtors are also current assets. So generally ये 3 current assets से आप current assets समझ सकते हैं. And what you understand is that all these current assets require money to be locked in them. So in case a company, आपके घर में पॉलिसी होगी, जरूर अपनी मम्मी से पूछिएगा, पापा से, जो भी किचन देखते हैं, कि भाई कितना आटा हरदम किचन में रहना चाहिए, कितनी चीनी किचन में हमेशा रहनी चाहिए. एक होता है जस्ट इन टाइम, कि जब ये मेरे घर आएगी, देखो चाय पे को पिलानी है, तो मैं मार्केट जाके चीनी 2 चम्मच खरीद के ले आऊंगा, इसके लिए चाय बना के दे दूंगा, फिर ये जब आएगा इसके लिए मैं फिर मार्केट जाके चीनी लेके आऊंगा. तो ये तो मैंने जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट किया है. बट अदरवाइज आई वुड एक्चुअली पुट सम अमाउंट ऑफ शुगर ऑलवेज इन माई किचन. आई वुड हैव सम अमाउंट ऑफ टी ऑलवेज इन माई किचन, टी लीव्स. Some amount of milk always in my kitchen. Some amount of rice always in my kitchen. So the same way the company also needs to have some amount of raw material always available with it. Not necessary. You can have a just-in-time concept also. Just-in-time concept में क्या होता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप सामान खरीद के ले आएंगे. But normally companies maintain inventory, and when you are maintaining inventory, you are having some amount of money blocked in the company permanently. हो रहा है ना, पैसा ब्लॉक हो रहा है ना. आपकी पॉलिसी है आप हरदम 10 किलो चावल घर में रखेंगे अपने, और 1 किलो चावल अगर 200 रुपए का आता है तो आपका 2000 रुपए चावल बिल हरदम ब्लॉक रहेगा आपके किचन के अंदर. So to maintain current assets, the company needs to have funds. To have rice in your kitchen, you require 2000 rupees so that you can buy it and keep it in the kitchen. Isn't it? Similarly, to have debtors, the company needs to have money to manage debtors. There is money of the company which is blocked in the debtors. So you need to have that money which you can afford to block in the debtors. अगर आप afford ही नहीं कर सकते कि मैं उधार पे सामान बेच दूं, मुझे फौरन कैश चाहिए, क्योंकि मुझे अभी सपोज करो तुम्हारी दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है, और तुम्हें हर आदमी कह रहा है कि 6-6 महीने बाद पैसे दूंगा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आफ्टर 2 months ऑफ टाइम यू डू नॉट हैव कैश टू बाय रॉ मटेरियल टू बी सोल्ड टू कस्टमर्स, क्योंकि एवरीवन हैज सेड दैट ही विल गिव यू मनी आफ्टर 6 months. सो यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मनी विद यू. So working capital is necessary for a company for reasons which we have discussed now. 3 types we have talked. Current assets. 1, inventory. You need money so that you can invest in that inventory. 2, debtors. You need money so that you can invest in the debtors. And 3, cash. Obviously, when you are having cash, you need money to have cash. Money and cash is interchangeable. Prepaid rent is a type of a fixed asset, long-term asset. You have paid a rent for say 5 years, five financial years. So you can say that it is a long-term asset with the company. It is not a short-term asset with the company, right?
but advance rent paid for that particular year maybe, that could be a current asset for the company. So वही एसेट देखो जब टाइम उसका 1 साल से कम हो गया तो उसको करंट एसेट कह देंगे, उसको अदरवाइज उसको लॉन्ग टर्म एसेट कहेंगे. So now we have understood. Is this clear to everyone that money needs to be locked in current asset? ऐसे बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हो कि सिर्फ मशीन खरीद के ले आए, बिल्डिंग बना दी और अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, ईंटें बनाने शुरू कर दिए. ऐसे नहीं बनते ईंटें बनाना शुरू करना है तो पहले आपको मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, ये तो फिक्स्ड एसेट चाहिए. उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा चाहिए, उसके बाद ईंटें बेचोगे तो वो पैसा 6 महीने बाद मिलेगा. वो लॉक जो पैसा है उसके लिए भी तुम्हें कैश चाहिए. So you require money for current assets. And current assets are known as, the sum total of current assets are known as gross working capital. Gross working capital is a name given to the entire current assets. और एक आंसर दिया था किसी ने, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, उसको कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज क्या होंगी कंपनी की? करंट लायबिलिटीज क्या हो सकती है कंपनी की? स्टार्ट टर्म लोन. इंटरेस्ट नहीं बेटे, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है. इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, जिनसे तुमने रॉ मटेरियल खरीदा है और जिनको पैसे बाद में दोगे, दैट इज अ करंट लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ करंट लायबिलिटी. सैलरी इज एन एक्सपेंस बेटे, सैलरी तो एक्सपेंस है. लायबिलिटी का है. सैलरी अगर नहीं पे करिए तब लायबिलिटी हो जाएगी, अदरवाइज सैलरी को आप एक्सपेंस कर दोगे पीएनएल अकाउंट में. जितनी अनपेड सैलरी है दैट इज अ करंट लायबिलिटी, राइट? सो नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस ओनली करंट एसेट्स. And this company requires 8 lakh plus 5 lakh 1300,000 rupees for building and equipment. बिल्डिंग में उसने कहा कि $5 लाख लगाएगा, $8 लाख उसके लगेंगे इक्विपमेंट में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और साथ में ही रिक्वायर्स $4,25,000 फॉर वर्किंग कैपिटल. सो द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड बाय दिस कंपनी इज $17,25,000, आउट ऑफ विच वर्किंग कैपिटल में एक एजम्पशन ले सकते हो कि वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा. That once the project is over, whatever cash you are maintained, cash you are keeping in your almari, that cash can be taken out from the almari and utilized for some other project. So working capital could be relieved. Your debtors could be sold. You know, at the end of the project जितने debtors आपके दिख रहे हैं working capital में, वो भी रिलीव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, उनको कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में. So working capital is an amount of investment where we can assume कि शुरू में उसकी रिक्वायरमेंट होगी और एंड में वो रिलीज होके मिल जाएगा. तो नॉर्मली कितना मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना आपका फंसा हुआ है पैसा वो सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स में कि वर्किंग कैपिटल वुड बी रिकवर्ड बाय द कंपनी इन द टर्मिनल ईयर. So this is the second principle of investment appraisal. पहला क्या था? You do it on cash flows, you do it on incremental cash flows. और दूसरा क्या हुआ कि you can assume that working capital would be released at the end of the project. So working capital would be considered as a cash inflow at the end of the project. पहले cash outflow होगा और फिर at the end of the project में you can assume. तो इसमें हम assume कर सकते हैं कि 4,25,000 का वर्किंग कैपिटल शुरू में उसको चाहिए खर्चा करने के लिए, और फिर जब प्रोजेक्ट 5 साल बाद खत्म हो जाएगा तो ये 4,25,000 जो है वो उसको वापस कैश इनफ्लो की तरह मिल जाएगा. Is this clear? How is money locked into working capital? ये कॉन्सेप्ट है जो किताबों में वो देते हैं. वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट डे टू डे एक्सपेंसेस
को मीट करने के लिए मनी, बट इससे आप समझ नहीं सकते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने का मनी क्या है, वर्किंग कैपिटल कहां से हो गया। ये इंडियन टी.एस. गरेवाल की किताब है, उसने ये बहुत पॉपुलर कर दिया है। So this is what is meant by the locking of money in working capital. So now we have understood. And what is the price which he has proposed? You see, आगे बढ़िए फिर. The equipment would be depreciated over 5 years and the building over 10 years. प्रोजेक्ट कितने साल का है? 5 साल का। इक्विपमेंट तो 5 साल में पूरा का पूरा डिप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब you will be, this equipment has got a life of 5 years, but the building would be depreciated over 10 years. This investment should last much longer, but Sheep Chang wanted to be conservative in his financial projections. If the 5-year contract were not renewed, the building and equipment would probably have second-hand salvage value close to zero. मतलब कि अगर 5 साल बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, नेवी का काम खत्म कर देती है कंपनी, तो ये कह रहा है कि इस बिल्डिंग का और इस इक्विपमेंट की वैल्यू जो है, अगर फिर से नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो जीरो हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये कंपनी के दोनों एसेट्स जो है वो अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने, तो दोनों एसेट्स, इक्विपमेंट भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, दोनों एसेट्स पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे 5 साल में। तो डिप्रिसिएशन के लॉज जो भी कह रहे हो, कायदा ये कहेगा कि कंपनी को बिल्डिंग और इक्विपमेंट दोनों को 100% डिप्रिसिएशन कर देना चाहिए 5 साल में। इक्विपमेंट तो है 5 साल का, दैट विल बी डिप्रिशिएटेड इन 5 years टाइम, बट बिल्डिंग इज फॉर 10 years. However, because the building will not be having any value after 5 years, then it will be prudent for the company to write off the entire cost of building in these 5 years itself. जब आगे कभी नहीं आनी है तो फिर उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था डिप्रिसिएशन में कि स्पैन, लाइफ स्पैन जो है वो कंपनी डिसाइड करती है। लाइफ स्पैन एसेट का कितने लंबा एसेट चलेगा ये कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है। हमने फॉर्मूला यूज किया था रिटर्न डाउन वैल्यू डिप्रिसिएशन का, उसमें मैंने आपको बताया था लाइफ स्पैन कंपनी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे 5 साल का लाइफ स्पैन है बिल्डिंग का, 10 साल का नहीं है। ऑल्दो चाहे कंपनी तो उसको 10 साल चला सकती है बिल्डिंग को, लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट रिन्यू नहीं होगा, शीप चैंग वांट्स टू बी कंजर्वेटिव कि भाई एक ही प्रोजेक्ट चलेगा 5 साल तक का, तो देन यू कैन डिप्रिशिएट द एंटायर बिल्डिंग ड्यूरिंग दीज 5 years। पर ये मुश्किल पार्ट था और कोई मुश्किल पार्ट नहीं है इसमें। ओके ओके, देयर वाजंट मच डिमांड anyway for canvas C products. Sheep Chang estimated his first year income statement for the project as follows. और फिर देखिए ये आपको ये देखो यहाँ पे शीप चैंग ने क्या प्राइस फिक्स किया है, जो नेवी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोटेशन दिया है एमएमएस ने, मेन मरीन ने, वो कितने रुपए का देंगे नेवी को प्रपोज कर रहे हैं, कितने पैसे में, कितने रुपए का एक सी बैग देंगे। आगे पढ़ते हैं इसको, फिर आगे बढ़ना शुरू करिए। कोई समन यहां से शुरू कर दो। If the 5-year contract was not renewed, ये तो कर दिया आपने। Sheep Chang estimated his first year income statement for the project as follows. पहले साल की इनकम प्रोजेक्शन शीप चैंग ने करी है, कितने बैग्स देने हैं नेवी को? 1 लाख बैग देने हैं नेवी को, 1 lakh bags every year for the next 5 years. This is the contract, isn't it? Can you see it in the case study? The contract is that you have to supply 1 lakh bags. And Sheep Chang has projected a price, quotation दिया है नेवी को, और क्या quotation दिया है कि मैं $25 का एक बैग दूंगा आपको,
और उसने ये कहा है कि मैं $25 का एक बैग आपको अगले 5 साल तक प्रोवाइड करूंगा, यानी कि he has given an offer which is not having any inflation imbibed inside it. हर साल उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं एक बैग $25 का दूंगा, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए, मैं अपने बैग की प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 5 साल तक आपको हर बैग $25 का हर साल 1 लाख बैग आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा इंसेंटिव है नेवी को शीपशैंक से खरीदने का, बिकॉज ही इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड द इन्फ्लेशन इन हिज प्रोजेक्शंस, ही इज डिमांडिंग द सेम प्राइस ईयर आफ्टर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो उसने स्ट्रेटेजी खेली है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं। ओके, सो वी हैव वी रेड द एंटायर थिंग, ये पढ़ लिया है पूरा। ओके, तो देखो 25 लाख का सेल होगा, उसका पहले साल का एस्टिमेट उसने दिया है कि मेरे क्या खर्चे होंगे और मेरी क्या रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू होगा 25 लाख का। खर्चे क्या है? कैनवस पे उसका खर्चा होगा 10 लाख रुपए का, $10 लाख का। हर बैग पे 10 रुपए का कैनवस लगेगा। रॉ मटेरियल which will be used, one of the raw material is canvas. Every bag would require a $10 canvas. So the total canvas cost is, projected cost is 100,000. 1 lakh bags in the first year, $10 per bag is the canvas cost. So he has projected a canvas cost of $10 lakh. Is that okay? No issue in this? Then second, direct labor and benefits. Direct labor आप समझते हैं ना, direct indirect हमने पढ़ा था। डायरेक्ट लेबर कहता है $400,000 4 पर बैग। हर लेबरर को जो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, समथिंग विच कैन बी इकोनॉमिकली एंड फिजिबली बी आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बैग है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और आप हर लेबर को $4 दे रहे हैं एक बैग बनाने के लिए। तो आप बैग देखते हो बोल सकते हैं कि उसमें $4 का लेबर लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर प्रोजेक्शन इज $4 lakh at the rate of $4 per bag. Is that okay? तो $14 लाख तो यही हो गया खर्चा इनका। $10 लाख तो कैनवस पे हो जाएगा, और $4 लाख जो है वो लेबर पे हो जाएगा। उसके बाद देखो अदर मटेरियल एंड सप्लाईज $100,000। ये प्रोजेक्टेड अदर मटेरियल जो भी लगेगा, गोंद लगेगी, स्टिचिंग होगी, जो भी लगेगा मटेरियल, उसका $100,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ $250,000। ओवरहेड क्या होता है? Any cost which is not direct is known as a overhead. Indirect costs are known as overhead. So इसमें रेंट भी होगा, इसमें और बता रेंट तो होगा नहीं, इनकी अपनी बिल्डिंग है, लेकिन और जो ओवरहेड्स होंगे, सैलरीज होंगी, वेजेस होंगी, ये सारे पावर एंड फ्यूल होगा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब ओवरहेड्स होंगे। So that will be $250,000. And depreciation expenses in the first year have been estimated as $210,000. So the factory profit is $540,000. How is the factory profit $540,000? 25 lakh minus 10 lakh minus 4 lakh minus 1 lakh minus 2,50,000 minus 2,10,000 will give you 5,40,000. So this is the first year projection that has been estimated by Shipshank. Then you see what happens. Can someone continue with the reading? There was no shipping expense because the Navy could pay it. He estimated the state and federal income tax at 35% of profit. He estimated zero incremental administrative or selling costs for this contract. He thought his cash costs would probably grow 4% year from inflation. The Navy procurement officer Shipshank was dealing with expressed serious interest in the bid. He said that $25 price was very competitive, especially considering the 5-year fixed term of the contract. He asked Shipshank to submit his 5-year financial forecast for review by the Navy auditors. Now देखो वो क्यों टेम्प्ट हो रहा है, नेवी का जो इंचार्ज है वो इसलिए
अटेम्प्ट हो रहा है बिकॉज शीपशैंक इज ऑफर्ड अ फिक्स प्राइस फॉर 5 years, नंबर 1. ओके. और दूसरी चीज जो हमने पढ़ा था वैल्यू चेन में कि द रिसर्च टू मैन्युफैक्चरिंग is an area of value chain which is demanded by the government when you are negotiating with the government. मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट नेगोशिएशन में जो वैल्यू चेन का पहला पोर्शन था रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो रिसर्च से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक की जो टोटल डिटेल्स होती हैं वो गवर्नमेंट हरदम मांगेगी आपसे. अगर आप गवर्नमेंट को कोई चीज बेचना चाहते हैं तो वो आपसे बोलेगी कि ठीक है आप अगर कोई चीज हमें बेचना चाहते हैं इतने प्राइस पे तो आप हमें पहले ये बताइए कि आपका खर्चा क्या होना है इसको बनाने में. नाउ प्राइवेट सेक्टर फेलो विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हाउ मच तुम खर्चा कर रहे हो, वो कहेगा मुझे कितने में तुम चीज दे रहे हो ये बताओ. लेकिन गवर्नमेंट दोनों चीज पूछती है. वर्ल्ड ओवर ये प्रोसेस है कि आप कितने में बेचोगे ये बताओ और आपको ये जो बेच रहे हो इसको बनाने में या खरीदने में क्या खर्चा आएगा वो भी हमें डिटेल्स दो. फिर गवर्नमेंट देखती है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है. अगर डबल डिजिट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है तो वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट आपको ऑर्डर नहीं देगी. तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, तुम्हारे टाइप के लोगों को रिक्रूट करा जाता है तो मुझसे कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट पे ये प्रोजेक्शन भेजना है, अब इस प्रोजेक्शन को ऐसा बनाओ कि प्रॉफिट जो है हमारा 9% 8% दिखे, 10% से ऊपर नहीं दिखे. तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका मार्जिन जो है प्रॉफिट का बहुत ज्यादा उनको दिखता है तो. ओके, सो ही हैज आस्क्ड to submit his 5-year financial forecast for review by the Navy auditors before recommending acceptance for the bid. Just go back to the value chain discussion we had. There were 3 objectives of the value chain I told you. One was negotiation with the government, second was inventory valuation जो manufacturing में होता था, और third was life cycle cost. तो ये पहला वाला जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है. ओके ओके, आगे पढ़ो बेटा. Someone else? Please take the lead. Anyone? Sheepshank said he would supply the requested information right away, even though he was not sure what to submit. He asked his controller, Bill Boline, what he thought the Navy wanted to see. Boline had not been involved in developing the bid, but he was aware of the assumption Sheepshank had made. Boline was of the opinion that they should prepare a year-by-year cash flow forecast and then calculate the IRR, NPV and payback for the project. He said he thought 15% was a reasonable estimate of the cost of capital for a company the size of Everest. ओके, अब देखो यही होता है कंपनी में. अब शीपशैंक जो है वो सीईओ है, सबसे सीनियर आदमी है, वो सब डिस्कस करके आ गए. उन्होंने कहा कि मुझे फाइनेंशियल डिटेल्स अब आप प्रोवाइड करिए. $25 की आपकी बिड हमने एक्सेप्ट अब रख रहे हैं अपने पास. अब आप फाइनेंशियल डिटेल्स दीजिए हमें, अगर हमें सूट करेगी हमारे ऑडिटर्स चेक करेंगे तब हम ये ऑर्डर आपको दे देंगे. आप हमें फाइनेंशियल डिटेल भेज दीजिए. तो ये भाई साहब बोल के आ गए कि ठीक है हम आपको फाइनेंशियल डिटेल भेज देंगे. बाहर आके इन्होंने अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर से पूछा भैया फाइनेंशियल डिटेल कौन सी चाहिए, मुझे नहीं मालूम. तो ये छोटी सी चीज है वैसे, लेकिन यू विल फेस दिस इन द कॉर्पोरेट वेयर योर सीनियर्स मे नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू एंड दे विल आस्क यू कि भाई बताइए आप, क्योंकि एवरीवन इज नॉट अ टेक्नो कमर्शियल पर्सन. So this fellow may be an engineer. He doesn't know what financial details have to be submitted. So he is told that sir आपको इस प्रोजेक्ट की IRR, NPV और पेबैक पीरियड भेजना पड़ेगा. और ये तीनों चीज हम लोग निकालना सीख चुके हैं. हमें चाहिए क्या होता है, कट ऑफ रेट चाहिए होता है. हमें NPV निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं. क्या क्या? What 2 things are required? One is the cash flows and second is the cut-off rate. बस आप निकाल देते. अब इस कंपनी का कैश फ्लो प्रोजेक्ट करना एक काम रह गया, और कट-ऑफ रेट देखो वो जो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल is 15%. That is actually the cut-off rate of this company. I told you that the company would want to invest into projects which give the return which
sufficient to satiate the shareholders. Shareholder कहाँ पे है? यहाँ पे है. Capital employed is comprising of share capital plus long term funds. अब सपोज करो किसी कंपनी का कोई लोन नहीं है, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे है. हर प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को सेटिस्फाई करे. इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. इसकी कॉस्ट क्या होती है? लोन की कॉस्ट क्या है कंपनी को? इंटरेस्ट. और इक्विटी की कॉस्ट क्या है कंपनी को? डिविडेंड. तो ये दोनों कॉस्ट ऑफ लोन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों को मिला के जो कॉस्ट बनती है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और नॉर्मली कंपनी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स की कट ऑफ रेट की तरह. लॉजिक वही है जो हम लोगों ने डिस्कस करी है क्लास में कि हर प्रोजेक्ट को इतना कमाना चाहिए कि शेयर होल्डर जो है वो सेटिएट हो जाए. और शेयर होल्डर कब सेटिएट होगा? जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी होगा. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कब आपका काफी होगा? जब आपके रेवेन्यू से सारे एक्सपेंसेस हटके इनकम टैक्स पे करने के बाद आपके पास इतना पैसा बचेगा जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज डिविडेंड. तो आप सैलरीज पूरी पे कर दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दीजिए, रेंट पे कर दीजिए, प्रिंटिंग का कर दीजिए, पावर का पे कर दीजिए, रॉ मटेरियल का पे कर दीजिए. फिर जो आपके पास बचता है उसमें आप टैक्स दे दीजिए. टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स का होता है. वो अगर इतना है कि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है तब शेयर होल्डर जो है कंपनी के शेयर को बेचता नहीं है. उसी तरह से लोन प्रोवाइडर को कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंटरेस्ट और डिविडेंड का फर्क हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. सो दिस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस ब्लॉक इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. ही इज गिविंग इट टू यू. दैट इज द कट ऑफ रेट. कैश फ्लो अब हमें निकालनी है. कैश फ्लो हमें निकालनी है इस केस की. आगे बढ़ो बेटा. समवन लेट्स फिनिश इट ऑफ नाउ. Pauline also said that they probably should include the land value in the project somehow, but he was not sure how. Just a minute. Now, Pauline also said that they would probably should include the land value. अभी हमने कौन वैल्यू, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निकाला? $17,25,000. It comprises of 8 lakh for building, 5 lakh for equipment, 5 lakh for building, 8 lakh for equipment, and 4,25,000 for working capital. We have considered 1325. We have not considered the cost of land. Why? Because we know कि सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंसिडर करनी चाहिए. जब लैंड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है पहले का, तो तुम्हें एक भी नया पैसा उस लैंड में नहीं लगाना है. So the incremental cost is 0. That is why I did not consider the cost of land as a capital expenditure. लेकिन इनका फाइनेंशियल कंट्रोलर कह रहा है कि सर देखो लैंड हमारे पास है पड़ा हुआ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 0 है, लेकिन फिर भी लैंड तो हमारा है सर, इसको भी आप कॉस्ट में इंक्लूड करिए. क्योंकि अगर आप लैंड की कॉस्ट इंक्लूड कर लोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो आपकी परसेंटेज प्रॉफिट कम हो जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा चांस है आपको प्रोजेक्ट आपको दे देगी. क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रिटर्न कम हो जाएगी. आप अगर इन्वेस्टमेंट में लैंड की कॉस्ट जोड़ दोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो आपका प्रॉफिट कम दिखेगा. Isn't it? तो ये आगे बढ़ो बेटा. Somehow, but he was not sure how. He said he felt sure a real estate developer would pay at least $15 lakh for that land now. In the midst of the big boom in the economy, main sea coast land was a hot item. He knew a comparable parcel near Booth Bay Harbor that sold recently for more than $1.5 million. But land away from the coast was a different story. He knew a 10-acre land in an industrial park fronting Interstate 95 near Rockland that sold recently for $3 lakh. Okay. So वो कह रहा है कि एक रियल एस्टेट डेवलपर उसका $15 लाख तक देने को तैयार हो सकता है इस लैंड के प्राइस को, लैंड को. और अदरवाइज अगर आप इसी तरह का लैंड कहीं इंटीरियर्स में खरीदेंगे तो आपको वो सस्ता मिल जाएगा और वो आपको करीब $3 लाख का मिल जाएगा. दूसरा चीज ही इज एस्टिमेटिंग की कॉस्ट जो है वो हर साल हर चीज की 4% से
बढ़ती चली जाएगी। तो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे ये इंटीरियर का लैंड हो, सबकी कॉस्ट जो है 4% से बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज द केस स्टडी। और इस केस स्टडी में कुछ क्वेश्चंस हैं। I don't know how many questions we'll be able to do in the class, but the first question is absolutely a must to be done by all of you. Project the cash flows for the proposed investment. So your projection has to be made for the next 5 years. So पहले साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें दिया हुआ है। पहले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के उसमें दिया हुआ है, और उसमें आपको टैक्स निकालना होगा। 35% टैक्स रेट है। 5,40,000 is the profit which is being projected by him, and you can reduce the tax from this, and then you can arrive at the cash flow as I told you in the last class. Last class में मैंने बताया था कि depreciation को add back कर दो तो तुम्हारा प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा कैश फ्लो के अंदर। तो इसको पहले साल का मैं आपको दिखा देता हूं। क्या Where are the other slides? ये रहा, ठीक। ये जरा कॉपी कर लेना पहला वाला। See, in the first year, we have discussed the first year. यहाँ पे दिया हुआ देखो 0 year का मतलब आज। He is doing this exercise in year 2000, so that is the year 0. Year 0 में खर्चा कितना है? 425,000 plus 800,000 plus 500,000. That is हम लोगों ने टोटल कर लिया था 17,25,000। 425 वर्किंग कैपिटल पे, 800,000 इक्विपमेंट पे और 500,000 जो है बिल्डिंग पे। दिस इज द कैश आउटफ्लो जो हम लोग एनपीवी निकालने के लिए कैश आउटफ्लो लेते थे, वो कैश आउटफ्लो है। उसके बाद देखो पहले साल में 25,100,000 इज योर रेवेन्यू given in the question. Everything is given, cash cost is given in the question. In case you look at the case study and you total all the raw material and everything, canvas वगैरह सब जोड़ दोगे तो खर्चा 7,150 का आएगा। तो ये कैश मार्जिन हो गया 750। डेप्रिसिएशन हैज बीन गिवन एज 210, तो ये डेप्रिसिएशन कम कर दिया। तो ये प्रॉफिट आ गया 5,40,000 का, जो मैंने आपको बताया था। 5,40,000 से 35% टैक्स पे कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 351,000 का आ गया, और इसमें हमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है, तो हमारी कैश फ्लो निकल जाएगी 351 प्लस 210, 561,000 की कैश फ्लो फर्स्ट ईयर की बन जाती है। इज दैट ओके? दिस इज ओके टू एवरीवन? हाउ टू कंप्यूट द कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर? नो बिग डील इन दिस। आई विल डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, but this first question has to be done by you now. Now in the second year, you see there is a 4% increase in everything except for the selling price. Selling price he has given a fixed quote. उसकी बिड जो है वो फिक्स्ड है, $25 में बेचूंगा। तो सेकेंड ईयर में 25,100,000 की जो रेवेन्यू है, लेकिन सारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी 4% से। सो 1750 अगर 4% से बढ़ता है तो कितना होता है? 1750 into 1.04, ये हो जाएगा आपका मिला के 1820। फिर 1820 into 1.04 हो जाएगा 1893, 1893 into 1.04 हो जाएगा 1950, 69। इस तरह से आपका कैश कॉस्ट जो है हर साल 4% से बढ़ती चली जाएगी। तो कैश मार्जिन आपके ये निकलेंगे। डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलग से। You see, depreciation to be used will be provided to you separately in the question. You don't need to calculate it. You can calculate it also using straight line method, अगर चाहो तो। लेकिन अदरवाइज इस क्वेश्चन में जॉन शैंक ने डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन इतना लगेगा,
बिल्डिंग का इतना लगेगा, इक्विपमेंट का इतना लगेगा, लेकिन बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 10 साल तक एप्लीकेबल है, इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस अमाउंट जो रह जाएगा 5 साल बाद बिल्डिंग का, इसी वो विल सी इट आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो 4% से बढ़ता जाएगा, तो आप पहले साल का कैश फ्लो, कैश प्रॉफिट